Good morning, class. Today we are starting with the topic that we have already discussed in short, that microorganism behaves as our friend as well as our foe. So firstly, we are starting with basically I'm giving you an introduction again about the microorganism, as microorganisms are very small organisms which cannot be seen with unaided eyes or naked eyes. We can see only them with the help of microscope. They can be unicellular or multicellular. They can exist alone or they can exist in colonies. For example, you may have observed the white structure on the bread during the moist rainy seasons, or some greenish patches or white patches on other food items. So this is just a remembrance of your microorganisms. Now we will study how they are beneficial for us or useful for us. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे आर बेनिफिशियल टू अस इन मैनी वेज एज वेल एज दे आर हार्मफुल फॉर अस एज दे कॉज डिजीजेस. So microorganism in general is used in making curd from milk, and it is used in making cheese, pickles, bread, cakes, pastries, alcohol, wine, vinegar, etc. इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, सबके घर में होता है. How this process occurs is just because in your milk a sugar is present, that is lactose, and that lactose sugar is get converted into an acid known as lactic acid by the help of a bacteria, that is lactobacillus, which reproduces in milk. Reproduce होता है milk के अंदर and helps to convert milk into curd. sugar को acid के अंदर convert कर देता है. lactose sugar get converted into lactic acid. Similarly, it is helpful, that is microorganisms are helpful in making breads also. In the first, that is curd from milk, we discussed about the bacteria, but in case of bread there is use of another microorganism, that is fungi or fungus. Example is yeast. Yeast is used in this case. This reproduces in the dough. जो आपका आटा होता है उसके अंदर वो डो, उसका गूथे हुए को हम क्या बोलते हैं? डो बोलते हैं. एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिसकी हेल्प से आपका जो डो है वो सॉफ्ट हो जाता है. एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड्स, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज एट्सेट्रा. एज इट इज़ मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सो द प्रोसेस इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन. खमीर बनता है इसके अंदर. सो बेसिकली इट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. Now, what is the commercial use? That is the use which we can perform in our homes. Now, what is the commercial use of microorganism? So, at a large scale, they are used in production of alcohol, wine, and acetic acid. Acetic acid is basically vinegar. In this case, the microorganism which is used is yeast. Yeast is basically fungi. It is used in production of alcohol and wine, and this case yeast is grown on natural sugar that is present in your grains like barley, wheat, and rice, or the crushed fruits. In that case, that sugar will get converted into alcohol, and the process is known as fermentation. Who discovered this fermentation process? The person is Louis Pasteur in 1857. You can see his picture here. So it is helpful in making or producing some other commercial products like alcohol, wine, and acetic acid, and the microorganism which is used is fungi. Example is yeast. Now we will discuss the medicinal use. दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ होता है. So whenever you fall ill, जब भी आप बीमार होते हैं, the doctor will advise some kind of tablets, capsules, or injections to you, such as penicillin. So the first discovery of an antibiotic is penicillin. इन सब मेडिसिन्स का जो सोर्स होता है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सब मेडिसिन्स आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, एंड दैट मेडिसिन्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ, जिनके अंदर लाइफ ना हो
उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. एंड दीज डेज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड only by from bacteria and fungi. In some cases we can prepare antibiotic for virus also, but as we know, one virus is very prevalent right now, that is coronavirus. In that case we are not able to prepare the antibiotic of it, but some antibiotics are already prepared like streptomycin, tetracycline, erythromycin. Basically these are all present in the medicines which you take when you have some kind of pain or you suffer from fever or some other diseases. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism. जो भी आपके disease causing microorganisms हैं उनको ये मारने में हेल्प करते हैं, उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं. तो जब वो ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो डिज़ीज़ भी स्प्रेड नहीं करेगा. Now we will discuss about the precautions while administering antibiotics. When you are taking an antibiotic, what precautions should you take? So it is very important to remember that कि जो आपकी antibiotics हैं that should be taken only on the advice of a qualified doctor. जब डॉक्टर एडवाइस करेगा तभी हमें एंटीबायोटिक लेनी है, अपने आप से कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती. ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. डॉक्टर ने अगर आपको बोला है 1 वीक लेनी है तो आप 1 वीक ही लेंगे. उसके बाद आपको अगर कंटिन्यू करना है तो फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर. डॉक्टर से पूछना होता है. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड, ज़रूरत नहीं है, तो इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. अगर आप उसको बिना वजह के अभी ले होगे तो अगर आपको फ्यूचर में उसी एंटीबायोटिक की नीड होगी तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी. सो ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली, अगर बिना ज़रूरत के हम ले रहे हैं तो दे विल किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ हैं उनको मार देगी जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है. सो antibiotics however are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अगर आपको कोल्ड या फ्लू हो रहा है उस केस में अगर आप कोई एंटीबायोटिक लेते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड ओनली टू किल बैक्टीरिया एंड फंजाई, बट द कोल्ड एंड फ्लू इज बेसिकली कॉज्ड बाय वायरस, सो इट विल नॉट हैव एनी एक्शन ऑन इट. तो वहाँ आपको एंटीबायोटिक लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. Now we will discuss about the first antibiotic, that is penicillin. Who discovered it? Alexander Fleming. Actually he was working on a culture of disease causing bacteria. जो disease causing bacteria है उनकी reproduction के ऊपर वो पढ़ रहे थे. Suddenly he found the spores of little green mold. उसके ऊपर उन्हें ऐसे छोटे छोटे से ये green molded spores दिखाई दिए. He observed that the presence of mold prevent the growth of bacteria. वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने नहीं दे रहे हैं. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया. उन्होंने काफ़ी बैक्टीरियाज को मार भी दिया. फ्रॉम दिस मोल्ड उन्होंने क्या करा, एक मेडिसिन प्रिपेयर करी एंड दैट मेडिसिन इज़ नोन एज पेनिसिलिन. हु डिस्कवर्ड इट? द पर्सन इज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड वैक्सीन. अभी भी आप ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, दैट हाउ वी विल बी एबल टू come out of our house only when the vaccine of coronavirus is discovered. Basically when a disease carrying microbe, कोई भी disease carrying microbe like coronavirus is entering our body, जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट. वो जैसे एक राजा के सिपाही होते हैं ऐसे ही ये भी हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे हमारे सिपाही हैं, दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडीज़. दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड दे विल फाइट विद द इन्वेडर. इन्वेडर मीन्स जो घुसने की कोशिश कर रहा है, एंड जो घुसने की कोशिश कर रहा है वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो उससे फाइट करने के लिए प्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं. अगर एक बार आपकी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, इट मीन्स अगर वो नेक्स्ट टाइम एंटर करेगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड है, वो उसको एंटर नहीं करने देगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. कोई आपके घर में एंटर करता है, आप उसे जानते हो तो आने दोगे, नहीं जानते हो तो नहीं आने दोगे. तो सिमिलरली आवर बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स इन दिस वे. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. वो उसकी मेमोरी में फिक्स हो जाता है कि अगर ये दोबारा एंटर करेगा तो मुझे इससे कैसे लड़ना है. When you are a children, you are given some injections. Ask your mother or your father that when you were a children, you are provided some injections to protect themselves. हमें खुद को बचाने के लिए against several diseases that are basically the vaccines which are available in hospitals.
वैक्सीनेशन आर गिवन टू चिल्ड्रन, सबको दी जाती है जब हम बच्चे होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट दी माइक्रोब्स. लाइक वन वैक्सीन दैट we know and we remember that is of polio. Against polio was a disease. Now there is minor chance of getting a disease of polio because we all got the vaccine of polio under the program of pulse polio program, in which 2 drops, 2 बूंद जिंदगी की आपको दी जाती थी till the age of 5 year. Polio drops given to a children are actually a vaccine. This is called oral vaccination. आपको मुंह के अंदर दिया जा रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ओरल वैक्सीनेशन बोलते हैं. एंड सम आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी इंजेक्टेड वैक्सीन होती है. दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस. क्योंकि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ ह्यूमन को ही इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, वो आपके एनिमल्स और प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं. तो हमें उसके केस में भी उनके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करनी पड़ती है. तो जो मेडिसिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज वैक्सीन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन अदर फीचर दैट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया. सो some bacteria other than rhizobium also, and blue green algae, one more microorganism is there. They are able to fix nitrogen from the atmosphere. Atmosphere के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है वो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता, तो वो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर, और इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. इसीलिए हम इन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. बायोलॉजिकली बिकॉज दे आर हैविंग लाइफ, एंड ये क्या फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. नाउ वी विल डिस्कस वन मोर बेनिफिट ऑफ हैविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आपका जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट है उसको डीकम्पोज कराने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन दैट केस वो ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, और उन सब्सटेंसेस को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो न्यू प्लांट्स. सो इन दिस केस वी आर जस्ट क्लीनिंग अप आवर एनवायरनमेंट. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, as you can see in this, from garbage we can make a garden by a process known as composting, जो हमने ऑलरेडी आपके फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम मेन्योर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो इन दैट केस वी आर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल फॉर अस. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द गुड फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल डिस्कस हाउ इट इज़ इविल टू अस. हमारा दुश्मन कैसे है. So why it is our dushman? Why it is our enemy? It's just because it causes diseases in human beings, plants and animals. और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं. बेसिकली ये जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ईजिली एंटर कर जाते हैं बाय द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. जो हम एयर के अंदर ब्रीथ कर रहे हैं उससे भी एंटर कर सकता है, पानी पी रहे हैं उससे भी एंटर कर सकता है, और जो खाना हम खा रहे हैं उससे भी एंटर कर सकता है. और इट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल. एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने पर भी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है. और ये अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट कैन एंटर योर बॉडी वेरी इजीली व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. सो माइक्रोबियल डिजीजेज जो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, इट इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट. दैट्स वाई दे आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. जब वो कम्युनिकेट करते हैं इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज आर कॉलेरा, common cold, chicken pox, tuberculosis, and nowadays very common, that is coronavirus. So when a person suffering from common cold sneezes, जब भी एक normal person या जो
जो पर्सन इन्फेक्टेड है, जिसे कोल्ड हुआ है, अगर वो स्नीज़ करता है, छींकता है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारी एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। एंड जब एक हेल्दी पर्सन उसी एयर को इनहेल करता है तो वो वायरस उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। एंड इस केस में एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस one more thing, that not only by the air and water, there are much more other carriers of causing diseases, and one carrier is your housefly. That housefly sits on some garbage and animal excreta, और फिर वो आकर के आपके फूड के ऊपर बैठ जाएगी और उस फूड को भी वो क्या कर देगी, कंटामिनेट कर देगी, और आप जब वो फूड खाएंगे तो इट मे लीड टू सम डिजीज़ टू यू. One another carrier is your mosquito. Example, the female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria. Malaria हो सकता है. और the female Aedes mosquito which is the carrier of dengue virus. तो आपको डेंगू हो सकता है उस केस में. Now there is some common diseases which is caused by microorganisms like tuberculosis which is caused by bacteria. Mode of transmission is air. Measles by virus, chickenpox by virus, polio by virus. All these are caused due to transmission of air. The mode of transmission is air. In this case, what we have to do, we have to make the patient in a complete isolation. अकेले में रखना होता है. Keep the personal belongings of the patient away from those of others. सब उसके contact में ना आए, उसकी चीज़ों को ना छुएं. And vaccination should be given at suitable age. इन सब की vaccinations हमें मिलती हैं. Now the next disease is cholera and typhoid. Both are caused due to a bacteria. And the mode of transmission is either by food or by water. In this case, we have to maintain the personal hygiene. हमें अपना खुद का खुद से ध्यान रखना है. And good sanitary habits. Sanitation habits हमारी अच्छी होनी चाहिए. We should eat that food which is properly cooked and boiled drinking water. And we should take vaccination also. One more disease is there, that is hepatitis A, which is also caused by a virus, and the mode of transmission is water. So one only thing is there, that we should drink boiled water, and one is vaccination. Malaria, which is caused due to a protozoa, and the protozoa is mosquito. So in that case, we should apply some mosquito repellents, or we can use mosquito nets, or we can spray insecticides to control breeding of mosquito. हमें mosquitoes को बढ़ने ही नहीं देना है. अगर बढ़ेंगे नहीं तो disease भी cause नहीं होगी. That's it for all today. Go through the video carefully and then I will provide you the question answers of this topic. Thank you.